Hello everybody, welcome again in Master Muzaffar classes. Today I shall teach you a very important topic, and the name of the topic is short story number 3, The Lost Child, और हिंदी में इसको कहेंगे खोया हुआ बच्चा. This short story was written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was a great Indian writer. He was one of the pioneers of Indo-Anglo fiction. He was one of the first greatest Indian writers to get an international readership with R.K. Narayan and Raja Rao. Anand is admired for his short stories and novels. He got various awards and honors like Sahitya Academy Award, Padma Bhushan and International Peace Prize. Today I shall tell you the summary of his short story The Lost Child, and then we shall discuss the short answer type questions of this short story. Now let's start. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world sky, like a diamond in the sky. Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. The story The Lost Child by Mulk Raj Anand is a very popular story. The story deals beautifully with a child's psychology. The whole story revolves around a small child. Once the child, along with his parents, went to a fair which was held in a village during the spring festival. The child was very happy and excited. The people were going to the fair through various means. They were going either by bullock carts or by riding horses or on foot. First, the child was attracted by the toys in the shops, those lined the way. The child pleaded his parents to buy the toys, but his father looked at him with red eyes. Thus his parents did not buy the toys for him. In the way, the child saw pale mustard fields. He entered the mustard fields. He saw a group of dragonflies and butterflies. He followed them. He tried to catch them, but did not succeed. The child saw a number of trees in a grove like banyan, jack, jaman, neem, champak and gulmohar, etc. As the child entered the grove, a shower of flowers fell upon him. He began to gather the raining petals in his hands, but when he heard the cooing of the doves, he ran towards his parents shouting, "The dove, the dove." The child saw a sweet shop. There were so many types of sweets as gulab jamun, rasgulla, barfi and jalebi, etc. The child's mouth watered for the barfi. It was his favorite sweet. He slowly murmured, "I want that barfi." But knowing the intention of his parents, he moved on without waiting for an answer. The child saw a flower seller. He wanted to have a garland, but he failed to have one.
The child saw a balloon seller. He saw many colored balloons. He wanted to have all the balloons, but his parents did not allow him to have those. The child saw a juggler playing a flute to a cobra. The child wanted to hear the music, but the child did not stay there as his parents forbade him to listen the coarse music of the juggler. The child saw a roundabout. Men, women, and children were swinging in the roundabout. The child was amazed and excited. He asked his parents to allow him to sit on the roundabout, but there was no reply from his parents. Actually, his parents had gone forward. He was left alone at the roundabout. Now the child was lost. The child cried loudly, "Mother, father." He ran here and there, but his parents were not found. He had lost his parents. The child looked for his parents everywhere. He saw a crowded temple. He went to the temple. He ran through pupils' legs. He was about to be trampled under the feet of the pupil. He struggled to find a way between their feet. He cried at the highest pitch of his voice, "Father, mother." A man heard his cry. He lifted him up in his arms. The man took the child out of the crowd. The man asked the child how he had got there and whose baby he was. But the child only cried, "I want my mother, I want my father." The man tried to soothe him. The man took the child to the roundabout. He gently asked the child if he would have a ride on the roundabout's horse. But the child only shouted, "I want my mother, I want my father." Now the man took the child to that place where the juggler was still playing on the flute before the cobra. He pleaded the child to listen to the music, but the child shut his ears with his fingers. He shouted, "I want my mother, I want my father." Now the man took the child near the balloon seller. The man asked the child if he would like to have a rainbow colored balloon. But the child turned his eyes from the balloons. He just said, "I want my mother, I want my father." Now the man took the child to the flower seller. He asked the child if he would like to have a garland to put round his neck. But the child sobbed, "I want my mother, I want my father." Now the man took the child to the counter of the sweet shop. He offered the child to eat the sweets, but the child turned his face away. He only sobbed, "I want my mother, I want my father." Thus the man tried to console the child in many ways, but the child sobbed in every case, "I want my mother, I want my father." Thus the story teaches us about a child's psychology and the fact that parents are more important to a child than anything else. It is the end of the story, and now we shall discuss the short answer type questions
based on this short story. Now you can see the short answer type questions on your screens. Question number 1. How were the people going to the fair? लोग मेले में कैसे जा रहे थे? आंसर, द पीपल वर गोइंग टू फेयर, लोग मेले में जा रहे थे आइदर बाई बुलक कार्ट्स, या तो बैलगाड़ियों के द्वारा, और बाई राइडिंग हॉर्सेस, या घोड़ों पर सवार होकर, और ऑन फूट, या पैदल। लोग मेले में या तो बैलगाड़ियों के द्वारा, या घोड़ों पर सवार होकर, या पैदल जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वॉज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड? बच्चे की पहली मांग क्या थी? वाइल गोइंग विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर, जबकि वह अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। मेले में अपने माता पिता के साथ जाते हुए बच्चे की पहली डिमांड क्या थी? आंसर, व्हेन द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, जब बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था, ही सा द स्टॉल ऑफ द टॉयज़, तो उसने खिलौनों का स्टॉल देखा। एट फर्स्ट, पहले या सर्वप्रथम, तो उसने सर्वप्रथम खिलौनों का स्टॉल देखा। ही डिमांडेड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से मांग की। टू बाई सम टॉयज़, कुछ खिलौनों को खरीदने के लिए उसने अपने माता पिता से कुछ खिलौनों को खरीदने के लिए मांग की। क्वेश्चन नंबर 3. गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मस्टर्ड फील्ड्स। गिव दीजिए, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटा वर्णन, ऑफ द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों का। सरसों के खेतों का एक छोटा सा वर्णन दीजिए। व्हाट डिड द लिटिल बॉय डू, छोटे लड़के ने क्या किया? इन द फील्ड्स, खेतों में। छोटे लड़के ने या नन्हे लड़के ने खेतों में क्या किया? और या वाई वॉज द बॉय अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मस्टर्ड फील्ड, लड़का सरसों के खेत की तरफ क्यों आकर्षित हुआ था? और या डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। एंड चाइल्ड्स चेज ऑफ बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज, तथा बच्चों की तितलियों और भंभीरियों का पीछा करने का वर्णन कीजिए। एज गिवन इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में दिया गया है। सरसों के खेतों की प्राकृतिक सुंदरता का तथा बच्चे के द्वारा तितलियों तथा भंभीरियों का पीछा करने का वर्णन कीजिए, जैसा कि कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में दिया गया है। आंसर, द मस्टर्ड फील्ड्स वर लुकिंग पेल लाइक गोल्ड। द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेत, वर लुकिंग पेल, पीले दिख रहे थे, लाइक गोल्ड, सोने के समान। सरसों के खेत सोने के समान पीले दिख रहे थे। दे वर स्प्रेड फार एंड वाइड, वे दूर दूर तक फैले हुए थे। दे वर फुल ऑफ येलो फ्लावर्स, वे पीले फूलों से भरे हुए थे। एंड लुकिंग लाइक येलो रिवर, और पीली नदी के समान दिखाई दे रहे थे। वे पीले फूलों से भरे हुए थे और पीली नदी के समान दिखाई दे रहे थे। द चाइल्ड एंटर्ड द मस्टर्ड फील्ड्स, बच्चे ने सरसों के खेतों में प्रवेश किया। ही सा ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, उसने
भंभीरियों का एक समूह देखा, एंड बटरफ्लाइज और तितलियों का एक समूह देखा। उसने भंभीरियों और तितलियों का एक समूह देखा। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच देम, बच्चे ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुआ। बच्चे ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जगलर डूइंग, बच्चे ने जगलर को या सपेरे को क्या करते हुए देखा। वाई डिड नॉट ही स्टे देयर, वे वहाँ क्यों नहीं ठहरा। आंसर, द चाइल्ड सा, बच्चे ने देखा, द जगलर प्लेइंग द फ्लट, सपेरे को बीन बजाते हुए, टू ए कोबरा, एक कोबरा की तरफ। बच्चे ने सपेरे को एक कोबरा के सामने बीन बजाते हुए देखा। बट द चाइल्ड डिड नॉट स्टे देयर, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं ठहरा। एज हिज पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम, क्योंकि उसके माता पिता उससे कह चुके थे, नॉट टू लिसन द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर, सपेरे के भद्दे संगीत को ना सुनने के लिए, क्योंकि उसके माता पिता ने उससे सपेरे के भद्दे संगीत को ना सुनने के लिए कहा था। लेकिन बच्चा वहाँ नहीं ठहरा, क्योंकि उसके माता पिता ने उससे सपेरे के भद्दे म्यूजिक को, भद्दे संगीत को ना सुनने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द चाइल्ड लॉस्ट, बच्चा कहाँ खोया। एंड हाउ वॉज ही लॉस्ट, और वह कैसे खोया। और या डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, हाउ द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, कि बच्चा कैसे आकर्षित हुआ, बाय द राउंड अबाउट, झूले के द्वारा। एंड व्हाट वॉज इट्स रिजल्ट, और इसका क्या परिणाम था। वर्णन कीजिए कि कैसे बच्चा झूले के द्वारा आकर्षित हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। आंसर, द चाइल्ड सा ए राउंड अबाउट, बच्चे ने एक झूला देखा। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर स्विंगिंग इन द राउंड अबाउट, आदमी, महिलाएं तथा बच्चे झूले में झूल रहे थे। द चाइल्ड वॉज अमेज्ड एंड एक्साइटेड, बच्चा हैरान था तथा उत्साहित था। बच्चा हैरान तथा उत्साहित था। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू अलाउ हिम टू सिट ऑन द राउंड अबाउट, उसने अपने माता पिता से झूले में बैठने के लिए उसे आज्ञा प्रदान करने के लिए कहा। बट देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता से कोई उत्तर नहीं आया। एक्चुअली हिज पेरेंट्स हैड गॉन फॉरवर्ड, वास्तव में उसके माता पिता आगे की ओर जा चुके थे। दस द चाइल्ड वॉज लॉस्ट नियर द राउंड अबाउट, इस प्रकार बच्चा झूले के पास खो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की अवस्था का वर्णन कीजिए। व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसने अपने माता पिता को खोया। बच्चे की अवस्था का वर्णन कीजिए जब उसने अपने माता पिता को खोया। और या डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दुर्दशा का वर्णन कीजिए। आफ्टर ही लूजेज द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके अपने माता पिता का साथ छोड़ने के या खोने के बाद। एज गिवन इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में दिया गया है। बच्चे की उसके माता पिता का साथ छोड़ने के बाद या छूटने के बाद दुर्दशा का वर्णन कीजिए, जैसा कि कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में दिया गया है। आंसर,
द चाइल्ड स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। बच्चे ने एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। फॉर सर्चिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। बच्चे ने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ही क्राइड लाउडली फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के लिए तेज़ी से चिल्लाया। हिज आइज़ वर फुलफिल्ड विद टीयर्स, उसकी आँखें आंसुओं के साथ भर गई थीं। क्वेश्चन नंबर 7, वाट वर द थिंग्स द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, वो क्या चीज़ें थीं जिन पर बच्चा आकर्षित हुआ था। इन द फेयर, मेले में। बिफोर गेटिंग लॉस्ट, खो जाने से पहले। वे क्या चीज़ें थीं जिन पर बच्चा मेले में खो जाने से पहले आकर्षित हुआ था। आंसर, बिफोर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर, मेले में खोने से पहले। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, बच्चा आकर्षित हो गया था। बाय द टॉयज़, खिलौनों द्वारा। स्वीट्स, मिठाइयों द्वारा। बैलून्स, गुब्बारों द्वारा। जगलर, सपेरे द्वारा। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला के द्वारा। एंड राउंड अबाउट एट्सेट्रा, तथा झूले इत्यादि के द्वारा। मेले में खोने से पहले बच्चा खिलौनों, मिठाइयों, गुब्बारों, सपेरे, फूलों की माला तथा झूले इत्यादि के द्वारा आकर्षित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हु ट्राइड टू सूथ द चाइल्ड एंड हाउ, बच्चे को शांत करने की कोशिश किसने की और कैसे। और या हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूद द चाइल्ड, आदमी ने बच्चे को शांत करने की कोशिश कैसे की। आंसर, ए मैन ट्राइड टू सूद द चाइल्ड, एक आदमी ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की या सांत्वना देने की कोशिश की। द मैन टुक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, आदमी बच्चे को झूले तक ले गया। टू द जगलर, सपेरे तक ले गया। टू द बैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाले के पास ले गया। टू द फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले के पास ले गया। एंड टू द स्वीट सेलर, और मिठाई बेचने वाले के पास ले गया। आदमी बच्चे को झूले, सपेरे, गुब्बारा बेचने वाले, फूल बेचने वाले तथा मिठाई बेचने वाले के पास ले गया। ही ऑफर्ड ऑल दीज थिंग्स, उसने ये सभी चीज़ें प्रस्तुत की। टू द चाइल्ड, बच्चे के लिए। टू मेक हिम हैप्पी, उसे खुश करने के लिए। उसने उसे खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें ऑफ़र की, दी या प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट, बच्चे ने कैसे प्रतिक्रिया दी। टू एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द मैन, आदमी के हर प्रकार के प्रस्ताव के प्रति। बच्चे ने आदमी के हर प्रकार के प्रस्ताव के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी। और या हाउ डिड द चाइल्ड बिहेव, बच्चे ने कैसे व्यवहार किया। विद द एफर्ट्स ऑफ द मैन, आदमी के प्रयत्नों के साथ। आदमी के प्रयत्नों के साथ बच्चे ने कैसा व्यवहार किया। और या व्हाट डिड द चाइल्ड फाइनली वांट, आखिरकार बच्चा क्या चाहता था। इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में। आखिरकार बच्चा कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में क्या चाहता था। आंसर, द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड बैलून्स, गार्लैंड्स, स्वीट्स, द टॉयज़, जगलर शो एंड ए स्विंग इन द राउंड अबाउट। आदमी ने बच्चे को गुब्बारे, मालाएं, मिठाइयाँ, खिलौने, सपेरे का शो तथा झूले में झूलने का प्रस्ताव दिया। बट द चाइल्ड रेफ्यूज्ड, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया।
टू हैव एनी ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों में से किसी को भी लेने से। लेकिन बच्चे ने उन चीज़ों में से किसी को भी रखने से या लेने से मना कर दिया। ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स, वे केवल अपने माता पिता को प्राप्त करना चाहता था। वह केवल अपने माता पिता को चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। What does the story The Lost Child teach us? कहानी द लॉस्ट चाइल्ड हमको क्या सिखाती है? आंसर, द स्टोरी टीच अस, कहानी हमें सिखाती है अबाउट ए चाइल्ड साइकोलॉजी, एक बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में, एंड द फैक्ट, और तथ्य के बारे में, दैट पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कि माता पिता अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, टू ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, देन एनीथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज़ के अपेक्षा। कहानी हमें एक बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में तथा इस तथ्य के बारे में सिखाती है कि माता पिता एक बच्चे के लिए किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। Now it is the end of the story and thanks for watching and learning. In my next video I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.